زندہ باپ سے اپنا حصہ مانگنے والوں سن لو، وراثت میں حصہ مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہر بیٹا اور بیٹی یہ لازمی سنیں کہ زندہ والد سے وراثت مانگنا درست ہے یا نہیں۔ کیا بیٹی یا بیٹا اپنے باپ سے زندگی میں ہی اپنا حصہ طلب کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی اولاد اپنے والد سے کہے کہ ہمیں ہمارا حق دے دیں تو کیا یہ مطالبہ جائز ہے یا اس میں کوئی گناہ شامل ہو جاتا ہے؟ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ کیا والد اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا اس میں اولاد کا مانگنا درست طریقہ ہے یا نہیں؟ اور اگر مانگنا ہو تو کس انداز سے مانگنا چاہیے تاکہ یہ بے ادبی یا نافرمانی میں شمار نہ ہو؟ ان تمام اہم سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ملیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل اور صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر غلط فہمیوں، جھگڑوں اور دل آزاریوں کا سبب بنتا ہے، اور وہ ہے جائیداد اور وراثت کا مسئلہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر وراثت ہے کیا؟ وراثت دراصل اس مال، جائیداد، زمین، دولت یا کسی بھی قسم کے اثاثے کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی جب تک کوئی شخص زندہ ہے اس کا مال اس کی ملکیت ہوتا ہے اور اس پر مکمل اختیار بھی اسی کا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی جائیداد اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اس کے وارثوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اسلام نے وراثت کے معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر انسان انصاف سے ہٹ جاتا ہے اور دنیاوی لالچ میں آ کر رشتوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وراثت کے اصول خود بیان فرمائے تاکہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کرنے کا حق نہ ہو اور ہر حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کو بھی وراثت میں حق دیا ہے، جو کہ اس دور میں ایک بہت بڑی انقلابی تعلیم تھی جب عورتوں کو کسی قسم کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کا حق دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہ تمام احکامات اس بات کی دلیل ہے کہ وراثت کی تقسیم کوئی معمولی معاملہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ عبادت اور اللہ کا حکم ہے جس میں اپنی مرضی یا جذبات کے مطابق تبدیلی کرنا درست نہیں۔ اسلام نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا یا کسی کا حق دبانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی وارث کا حق مارا اللہ قیامت کے دن اس کا حق جنت سے کاٹ دے گا۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وراثت میں ناانصافی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اولاد کی کہ جو اولاد اللہ تعالی ماں باپ کو عطا کرتا ہے اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اولاد دراصل اللہ کی
बहुत बड़ी नियामत है और अमानत होती है। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके, तकलीफें उठाकर, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी तालीम व तरबियत करते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक में कई मकामात पर औलाद को जीनत करार दिया गया, लेकिन साथ ही ये भी फरमाया कि ये एक आजमाइश भी है, यानी औलाद का होना खुशी की बात है लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। इसी तरह औलाद पर भी वालिदैन के हक बहुत ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और एक और हदीस में फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा है। इन अहादीस से ये वाज़ेह होता है कि वालिदैन की खिदमत और उनकी इज्जत करना कितना अहम है। जब तक वालिदैन जिंदा होते हैं, उनका एहतराम, उनकी इताअत और उनके साथ हुस्न सलूक करना औलाद की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उनकी मौजूदगी में उनके माल पर नजर रखना या उस पर लालच करना एक ऐसी चीज है जो इंसान के अखलाक को कमजोर कर देती है। वालिदैन की जिंदगी में उनकी जायदाद मुकम्मल तौर पर उनकी मिल्कियत होती है और वो उसमें जो चाहे खर्च कर सकते हैं। अगर वो चाहे कि अपने औलाद को कुछ दे तो दे सकते हैं और अगर चाहे तो ना दे, ये उनका इख्तियार है। अलबत्ता इस्लाम ये तालीम देता है कि अगर वालिद अपनी जिंदगी में कुछ तकसीम करे तो इंसाफ के साथ करे और तमाम औलाद के साथ बराबर सलूक करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि अगर वालिद अपनी जिंदगी में कुछ देना चाहे तो उन्हें किसी एक को ज्यादा और दूसरे को कम नहीं देना चाहिए, बल्कि इंसाफ को मद्देनजर रखना चाहिए। अब यहाँ एक अहम नुक्ता समझने की कोशिश करते हैं कि वालिदैन की जिंदगी में औलाद का रवैया कैसा होना चाहिए। औलाद को चाहिए कि वह अपने वालिदैन के माल को अपनी मिल्कियत ना समझे, बल्कि उसे वालिदैन की अमानत समझे। चूंकि हकीकत यही है कि जब तक वालिद जिंदा है जायदाद उन्हीं की है और औलाद का उसमें कोई लाजमी हिस्सा नहीं बनता। अगर औलाद इस बात को समझ ले तो बहुत से झगड़े खुद ब खुद खत्म हो सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के दौर में अक्सर लोग इस मामले में जल्दबाजी और लालच का शिकार हो जाते हैं और वालिदैन की जिंदगी में ही वरासत का मुतालबा करने लगते हैं। अब बात करते हैं उस औलाद के बारे में जो अपने वालिदैन से हिस्सा मांगती है, यानी जायदाद या वरासत में से अपना हक तलब करती है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? सबसे पहले ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वरासत का हक सिर्फ उस वक्त पैदा होता है जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए। उससे पहले वरासत का कोई तसव्वुर नहीं होता। लिहाजा अगर कोई औलाद अपने जिंदा वालिद से वरासत का हिस्सा मांगती है तो शरई तौर पर यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो चीज अभी वरासत बनी ही नहीं, वो अभी भी वालिद की मिल्कियत है। अलबत्ता अगर औलाद अदब व एहतराम के साथ अपने वालिद से किसी माली मदद की दरखास्त करे या किसी जरूरत के तहत कुछ मांगे तो ये एक अलग बात है, लेकिन उसे वरासत का हक समझकर मांगना दुरुस्त नहीं। अगर कोई औलाद अपने वालिद पर दबाव डालती है, लड़ाई झगड़ा करती है या उन्हें मजबूर करती है कि वह जायदाद तकसीम करें तो ये अमल ना सिर्फ गलत है बल्कि गुनाह कबीरा के जुमरे में भी आ सकता है, क्योंकि उसमें वालिदैन की दिल आजारी और नाफरमानी शामिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की बहुत ताकीद फरमाई है। हदीस में आया है कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने दोबारा पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ।
फिर उसने तीसरी बार पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसके बाद उसने चौथी बार पूछा फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। इस हदीस से मालूम होता है कि वालिदैन का मकाम कितना बुलंद है और उनके साथ बदतमीजी या उन पर दबाव डालना कितना बड़ा गलत अमल हो सकता है। लिहाजा अगर कोई औलाद अपने वालिदैन से उनकी जिंदगी में जायदाद मांगती है तो उसे बहुत ज्यादा एहतियात और अदब का मुजाहरा करना चाहिए। अगर वालिद खुद अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो यह उनका इख्तियार है और वो अपने उसे बतौर हिबा या तोहफा दे सकते हैं, ना कि विरासत के तौर पर। और अगर ना देना चाहे तो औलाद को उस पर सब्र करना चाहिए और दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं लाना चाहिए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि इस्लाम ने विरासत के मामले को निहायत खूबसूरती और इंसाफ के साथ बयान किया है, लेकिन उसके साथ साथ वालिदैन के हक को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी है। अगर हम उन दोनों चीजों के दरमियान तवाजुन कायम कर लें तो न सिर्फ हमारे घरों में सुकून आएगा बल्कि हम अल्लाह की रजा भी हासिल कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक औलाद बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों में वालिदैन के लिए मोहब्बत, एहतराम और फरमाबरदारी पैदा फरमाए और हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की इताअत ताकत दे और अपने और ए रब्बुल इज्जत हम तमाम बच्चों के लिए खास दुआ करते हैं कि जिनके वालिदैन जिंदा है वो अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनका हक अदा करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें और उनकी रजा को हमेशा मुकद्दम रखें। और जिन बच्चों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ कबूल फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी याद में सदक़े जारिया कबूल फरमा ताकि उनकी रूहों को सुकून और राहत मिले। ए अल्लाह हमें और हमारी औलाद को वालिदैन की खुशनुदी हासिल करने की तौफीक अता फरमा और हमारे घरों को रहमत, सुकून और मोहब्बत से भर दे। प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही मालूमाती और अहम है और ये हर घर तक पहुंचनी चाहिए, हर बेटे और हर बेटी तक, ताकि हर शख्स को वालिदैन के हुकूक, वरासत के उसूल और खिदमत वालिदैन की अहमियत के बारे में सही इल्म हासिल हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे की जिंदगी में ये नेकी पहुंच जाए और आपको बहुत ज्यादा सवाब मिले। इस वीडियो को देखने और दूसरों तक पहुंचाने से न सिर्फ इल्म की रोशनी फैलती है बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत और अजर भी हासिल होता है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम का हामी व नासिर हो, आमीन। आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।